So my name is Avinash Yadav from class 6 from Tanveem School Mirzapur. This is our projects of angles, models of types of angle. In this project we can find various types of angles such as acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle and reflecting angle. First, more than 0 degree and less than 90 degree. This full angle range is acute angle range. When it comes on 90 degree, it will become right angle range. More than 90 degree and less than 180 degree, this full range is obtuse angle range. When it comes on 180 degree, it will become straight angle range. More than 180 degree and less than 360 degree, this full range is reflex angle range. When it comes on 360 degree, it will become complete angle. नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समूचे जनपद के अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम में मौजूद हैं और आज हमारे साथ डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं जो इस विद्यालय की ख्याति के लिए सीधे सीधे जानी जाती हैं। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी बेहतर हो सकता है, अनवरत निरंतर इस प्रयास में प्रयत्नशील आज हमारे साथ दो ऐसी सशक्त मजबूत महिलाएं हैं जो शायद शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई जानता है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज जिस तरीके से छात्रों के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, क्या मैसेज जाता है इसका, क्या मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, एंड सब दर्शकों को भी जय हिंद, सनबीम स्कूल मिर्ज़ापुर की कंप्लीट टीम की तरफ से। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट्स ने वो किया है जो हम चाहते थे करना। उनको सिर्फ एक थ्योरेटिकल बेसिस पर पढ़ाई, आजकल हम सब जानते हैं कि इतने से नहीं होगा। जब तक हमारी कोई भी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अधूरे और पिछड़े हुए रहेंगे। तो अपने बच्चों को सबसे आगे करने के लिए सनबीम स्कूल के बच्चे एक ऐसे तह पर पहुंचे जहां पर उनको कहीं भी कोई भी कठिनाई फेस ना हो। और ये हर सब्जेक्ट में हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स है, साइंस है। जब तक बच्चे किसी भी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल चीज़ से, आज की डे टू डे की चीज़ से रिलेट कर कर नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आज की डेट पे रट्टा तो मार लेंगे, लेकिन रट्टा मार आजकल दुनिया नहीं चल पाती है। हमें हर चीज़ को, एक थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना है। वही हमारे हर क्लास में हर बच्चों ने, जो हिंदी की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, मैथ्स की है, साइंस की, एसएसटी तक की, उन्होंने कंप्यूटर्स तक की, उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हैं अपनी टीचर्स की हेल्प से। उन्होंने एक ऐसा माइंड अप्लाई किया है कि आगे आने वाले हमारे और सेशंस में भी ये बच्चे देख सकते हैं और एक जो उन्हें चैप्टर पढ़ के समझना था, जो एक टीचर्स दे कुड हैव जस्ट read it in a theory basis in a class, they will use those projects in making other students understand what actually they means, how are they relating to our day-to-day lives. My name is Amrita Shrivastava and I am studying in class 6. We are here for water harvesting. First of all, rainwater falls to the rooftop and goes into the container. Then it collects it and then goes to the filtration tank. Then the water here filters and it is used for our purposes, for irrigation and washing our clothes and cars and washing our fields. Thank you, Anjayan. Myself, Sohana Gautam. I'm student of class 6. This is the model of rain harvesting. First falls on rooftop. From rooftop to go filtration tank. From filtration to storage tank. We can use it for agriculture and any other purposes like for home uses, etc. Jai Hind, sir. My name is Kirti Singh of class 6 and this is our working model on the project tense. Let me explain you about tense. A tense is a form of verb that shows if something happens in the past, present and future. A tense of the verb tells us about the event or something that is existed or the person did something. The first one is the present tense, the that is happening currently. For example, I am in class 6. Similarly, I play outside. These examples are showing the action that is happening in the present. The second one is the past tense. The past tense tells about the action that has happened in the past. For example, I was in class 5th last year. Similarly, I lived in USA. These examples are showing the action that has happened in the past. And the last one or the third one is the future tense. The future tense is a verb tense that shows the action that has not yet happened but expected to happen in the future. For example, I will be in class 7 next year. Similarly,
I will play outside. These actions are showing and indicating the action that will happen in the future. कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं रहा, हर सब्जेक्ट को आपने पकड़ के रखा, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, है ना, और चाहे आपका सिलेबस ही क्यों ना हो। इसका चयन कैसे आपने किया कि सभी क्षेत्र से बच्चे बिल्कुल जो है रिलेटेड? देखिए, एक डोर हमें पढ़ाई के वक्त हमेशा बांधनी पड़ती है सिलेबस और बाहरी दुनिया के बीच में। जब तक हम इस डोर को नहीं बांधेंगे तब तक बच्चे आज पढ़ के पास तो हो जाएंगे, लेकिन आगे जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगे, जब हमारे यहाँ से 2 बजे 3 बजे 1 बजे जितने बजे भी निकलते हैं, उसके बाद जब वो डेली लाइफ को डील करते हैं हर एज का बच्चा, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे चीजों को। वो कैसे रिएक्ट करना है, उनको अपनी लाइफ के साथ कैसे उनको अपनी हर चीज को फेस करना है, वो समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी मैथ्स कैलकुलेशन है, बच्चे छोटी क्लास के उसको हम अभी तो समझाते हैं, टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, पेरेंट्स दे विल ट्राई दैट वो उसको पूरे तरीके से ग्रास्प कर पाए, बट उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट के मॉडल में लेकर आना है कि बच्चा उसको सिर्फ याद ही नहीं कर पाए, उनके माइंड में यहाँ पर बस सेट हो जाए वो। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो छोटी क्लासेस में भी बच्चों को याद रखने पड़ते हैं, जो आपके जीवन भर, हम आजकल कुछ भी लेने जाते हैं, वी नीड टू डू दैट स्मॉल कैलकुलेशंस, तो जीवन भर हमें याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। My name is Tanya Yadav. My name is Naitik Rajput. My name is Shreyans Patel. So this is our English project work model on preposition. Prepositions are like into, out, at, in front of, on, etc. So, Naitik, what is a preposition? Preposition is a word that shows the relationship between the word, elements, etc. So let's start. The car is at the main gate. The scooter is front of the car. The road is across the house. And the dustbin is on the ground. The dust is out of the dustbin. The plant is beside the house. The guest house is up the stairs. The scooter is coming into the house. The grass is down of the stairs. The plant is between the shed and the swimming pool. Half of the swimming pool is below the garden. Half of the swimming pool is under the garden. And the car is under the shed. And the road is after the shed. Thank you. thank you. ये जो तैयारी होती है, और ये लोग कहते हैं, तमाम गार्जियंस ने भी हमसे बात किया, वो बहुत सेटिस्फाइड नजर आए। ऐसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी है आपके यहाँ, आपको लगता है कि और इसमें करने की जरूरत है या ये बिल्कुल टॉप पे है? देखिए, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही होती है, बट हम अपनी तरफ से और हमारे शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जब गार्जियन के सामने कुछ प्रेजेंट करें तो वो बेस्ट हो, और हम बेटर तो कर ही सकते हैं और हम बेटर करेंगे विद टाइम। बट अभी भी जो हमने किया और हमारे छात्रों ने किया है, हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें और उनकी हेल्प करें, क्योंकि सब कुछ स्कूल नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें आपको भी करनी है, आपको भी उन्हें समझाना है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको भी उन्हें देनी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट सब बोलते हैं कि होम इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर यू लर्न थिंग्स, तो वहाँ से शुरुआत हो। स्कूल तो है ही, हम तो हैं ही, हम तो करेंगे ही, हम हमारे बच्चे अध्यापक सब करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं हम सब करेंगे। देखा कि छात्रों के प्रति दृढ़ कर्तव्य, निश्चय और जबरदस्त, जो बच्चों के जो सफलता के पीछे जो तैयारी होती है उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए निरंतर इस विद्यालय की तरफ से अनवरत प्रयास जारी है। Good morning. Today we are representing 3D model of physical division of India. It comprises the Himalayan mountain range, the northern plain, the Indian desert, the peninsular plateau and the coastal plains and the islands. The Himalayan mountain range has 3 ranges, which is Middle Himalaya, Greater Himalaya and Shivalik. The northern plains comprises of 3 major rivers, which are Brahmaputra, Ganga and Indus. It is best for agriculture purpose and for farming. The Indian desert is also known as Thar desert, which is sand dunes, and it comprises Luni river and it lies near to the Aravalli mountain ranges. The most northern point of our country is Indira Col, the most southern point of our country is Indira Point, and the most eastern point is Kibithu, and the most western point is Guwarmoti. This is Bay of Bengal, Arabian Sea, and the neighboring countries are Bangladesh, Bhutan, Nepal, China, Afghanistan and Pakistan.
The Godavari is the longest river in peninsular plateau, and the Ganga is the most longest river in our country. The Kanchenjunga is the most longest mountain in our country. Thank you. Peninsular plateau, the coastal plain, and this is two islands in India, the Andaman and Nicobar and Lakshadweep. The peninsular plateau longest river Godavari, peninsular plateau also known as Deccan Plateau, coastal plains, and this is Vithu, Kanchenjunga, and Ganga is the largest river in our country. My name is Mohit Shukla. I am from Sunbeam School Mirzapur of class 9. I have a partner, Mr. Apoor Singh. We are going to represent our Independence Day model. We have some freedom fighters, like the first one is Bal Gangadhar Tilak. Once he said that Swaraj is my birthright and I shall have it. The another one who was a great leader, he said that his name was Sardar Vallabhbhai Patel. Once he said that manpower without unity is not a strength. The another famous person is Pandit Jawaharlal Nehru. One said that person who talks the most of his own virtues is often the least virtuous. Another one is Chandrasekhar Sardar. His lifespan was too much short. Once he died fighting with British Army in civil court line. Another one is Pratibha Patil. Sarojini Naidu. Once he said that a country's greatness lies in the undying ideas of love and sacrifice that inspire the mothers of the race. Myself Ansh Maurya. This is the hydroelectric power plant of Sunbeam School class 9. Sir, due to high build of electric dam, there was too much potential energy stored here. If we release water from a height, the potential energies get converted into the kinetic energy. Due to kinetic energy, turbine will rotate, and this will produce electrical energy and go to generator. जो आज हम सब हमारे पेरेंट्स आप देख पा रहे हैं, हम लोग आज जितना भी देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सफलता हमने अगर प्राप्त करी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे सारे अध्यापकों की टीम का। सिर्फ अध्यापक ही नहीं, बाकी भी जो हमारी सनबीम स्कूल मिर्जापुर की टीम है, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ और बच्चों को प्रोजेक्ट्स में जो इनोवेशंस लानी चाहिए, जो वो रिलेशन बनाने का उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। Good morning and Jain. We are a student of class 9 and we are from Sunbeam School Mirzapur. My name is Vartika Gautam and Majal Patel. And my name is Harshita Maurya. And my name is Soumya Maurya. We are here to tell you about kidney working model. This whole kidney working model consists two kidney. In human body there are two kidneys which are made up of millions of filtering units which are called nephrons. Are two kinds, glomerulus and a tubule. Glomerulus filters the blood and tubule return needed substance into blood. And Jain sir, my name is Arnav Upadhyay. My name is Arad Singh. My name is Anshwari. In this project, so this is solar panels providing energy from the sunlight. It is windmill. It produces energy from wind. Electronic energy is used to heating and lighting. Good morning. My name is Anvisal from class 4. My name is Pragya Singh from class 4. Morning sir. My name is Muskan Maurya from class 4. This is solar system of our and this is sun. It provides energy to all planets. Mercury. Mercury is the smallest planet of our solar system. This is Venus. Venus is the hottest planet of our solar system. Both has no moons. Earth. This is Earth. Earth is the only planet where life can exist. And this is Mars. Mars is the red planet because Mars is red because red dwarf. Jupiter is biggest planet of our solar system. Saturn. Saturn is the only planet that has ring. This is Uranus. Uranus is the third largest planet of our solar system. This is Neptune. Neptune is the windy and coldest planet of our solar system. I am Athar from class 8 Sunbeam School Mirzapur. This is our laser security system in which we can protect our bank or our expenses houses by our security system. We can detect any thief by entering or in this house. Like I am entering from here, so it can detect. From that, we can know that thief is entering in our house. By boundary side, we can use here multiple reflection. Through multiple reflection, if
thief entering from the wall side, we can detect the thief is entering the house or banks. We can save our money. ये यहाँ पे लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी थीफ एंटर कर रहा है बैंक में या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ें जहाँ पे रखी हुई या लग्जरी हाउसेज हैं, सो इस सिस्टम से क्या होता है, देयर कंटिन्यूअस लेज़र सिस्टम ऑन रहता है. एनी थीफ एंटरिंग, इफ सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी गार्ड स्लीप, द अलार्म विल डिटेक्ट. Today the exhibition is started in this school, and many parents visit to see this, and they are happy to see the students working very hard in all the projects. So these all are the working projects, and by the working projects students may learn faster, because the working projects they see the working projects, and by that they can learn everything easier. Sir, my name is Arnav from class 7th and from school Sunbeam School. We made drip irrigation. The process, when we switch on the switch, the water goes from the well to the water tank, and then through the pipe to the plants, and drip the water to the roots, and drip irrigation process is completed. By this, there is no wastage of water. We are here to describe the drip irrigation method. The method is, we are switch on when the well water go to the water tank water to pipe to the water, drip in the water in the plant root, and the drip irrigation method is completed. There, the drip irrigation method is less amount of water is wasted. नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता. जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन तमाम ऐसी चीजों को आपके सामने रखते हैं जिसके बारे में जानना और देखना आपके लिए आवश्यक प्रतीत होता है. फिलहाल इस वक्त हम जनपद मिर्जापुर के अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम खुरुआ आमघाट में मौजूद हैं, और आज यहाँ के छात्रों के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जो प्रदर्शनी लगाई गई, निश्चित रूप से न सिर्फ छात्र गौरवान्वित हैं, बल्कि समूचा जो गार्जियन है वो भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. तो जब वो अपने बच्चों को बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से उनका भी सीना काफी चौड़ा होता है. फिलहाल जनपद का ये अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम में यह देखने को जरूर मिल रहा है. हालांकि तमाम ऐसे छात्रों के जो परिजन हैं, माता पिता हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य को लेके जो संजीदगी है, जो तत्परता है, जो समर्पण है, शायद यही कारण है कि समूचे मंडल में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में सनबीम स्कूल का लोग लोहा मानते हैं. Welcome to Sunbeam School Mirzapur. So this is our project, non-finite verbs. There are two types of verbs, finite verbs and non-finite verbs. So our team has selected the non-finite verbs. There are three types of non-finite verbs: infinitives, gerunds and participles. As you see, there are some sentences forming through the words that are in the participles, gerunds and infinitives. So our model would work like this. You can see here. So please roll it. And let's sir please come and श्याम मेरी सिंह है. स्कूल में कार्य अच्छा हुआ था बच्चों का, वहाँ पे मतलब कि पढ़ाई भी अच्छी हुई है. अच्छा लगा, बच्चे भी अच्छे तरीके से समझाए और अच्छा लगा. वेरी गुड. मेरी लड़की पढ़ती है फर्स्ट में, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. अभी मैं देखी हूँ, बहुत अच्छी स्कूल है. मैं आज अपनी दूसरी भी बेटी का एडमिशन करवाने आई हूँ, और मैं तो यही सबसे बोलूँगी कि बहुत अच्छी स्कूल है, सब लोग करवाइए एडमिशन. टीचर तो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, और फिर जो बच्चा रहता है वो हम लोग भी देख लेते हैं. और बाकी यहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं, जो भी मैम है, जो भी सर है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं. बहुत अच्छा बच्चों को वो दे रहे हैं. Agriculture means farming, and in farming we take livestock. Livestock means पालन. This is a apiculture. Apiculture means मधुमक्खी पालन, and यहाँ पर गाय का भी पालन होता है. when apiculture का अगर हम लोग मधुमक्खी पालन करें तो उससे हम लोग को हनी मिलता है, और अगर हम लोग गाय का पालन करेंगे तो हमें, और ये क्रॉप रोटेशन fertility in soil and organic farming. Here we see mixed crop growing on the one land. It is known as mixed crop. एक खेत में दो से ज़्यादा अनाज उगाए जाते हैं, उसे हम लोग मिक्स क्रॉप कहते हैं. एंड इज ए वर्मीकल्चर. वर्मीकल्चर इज ए फॉर्म ऑफ विच प्रोडक्शन ऑफ वर्मीकल्चर होता है जहाँ केचुओं का पालन किया जाता है, उसे हम लोग वर्मीकल्चर कहते हैं. हमारे बच्चे सनबीम स्कूल में पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ पे बच्चों का करियर बहुत अच्छा है. हमारे बच्चे आगे जाकर बेस्ट करेंगे.
और यहाँ पर हम लोग पूरा क्लास में घूमे हैं, सब कुछ देखे हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छा बन रहा है। बहुत सबसे अच्छा यहाँ पर ये लगा कि बच्चों को सब कुछ मतलब बताया जा रहा है, अच्छे से सब कुछ समझाया जा रहा है। मैंने मिस वाशु पाठक मदर हूँ और मेरा नाम मधु पाठक है। मैं इसी गांव मतलब हुरवा की हूँ, पास में ही मेरा घर है। यहाँ का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है कि बच्चे आगे चलकर कुछ बनेंगे। हम लोग सोचते हैं कि नए नए फंक्शन होते हैं, मगर नए नए फंक्शन के ही तरह बच्चे सीख रहे हैं, इसलिए हमें ये सब बहुत ही अच्छा लगा। Forestation, afforestation means establishment of trees, means जो बड़े पेड़ों को लगाया जाता है उसे afforestation कहते हैं। And this is windmill. Windmill is used to generate electricity. Deforestation is caused by cutting trees. Cutting trees. बड़े पैमाने में जो काटा जाता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और फैक्ट्री जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उससे एसिड रेन भी होता है। एसिड रेन की वजह से हम लोग को एनवायरनमेंट को दिक्कत होती है। और ये एफॉरेस्टेशन है और डिफॉरेस्टेशन। थैंक यू। Good morning. We are from class 6 and we had made this project Save Earth. We don't cut the trees. हमें फैक्ट्रीज कम से कम का यूज़ करना चाहिए। इससे जो स्मोक निकलता है वो हमारे एयर को पोल्यूट कर सकते हैं। और हमें ट्रीज कभी कट नहीं करते क्योंकि जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं उनको हर्ट हो सकता है। और ट्रीज हमें जितने कट करने चाहिए उतने लगाने भी चाहिए। जो फैक्ट्री से पोल्यूशन रिवर में नहीं थ्रो करनी चाहिए, उससे रिवर पोल्यूट होता है और एनिमल्स की ड्रिंक करने आते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है। और ह्यूमंस भी ड्रिंक करते हैं तो उनकी भी डेथ हो सकती है। और हम लोग को कभी रिवर पोल्यूट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे होते हैं वहाँ पे स्मोक कम होता है और सोलर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करना पड़ता है। It is a model which was prepared by us for our project and it is based on to show the state capital or union territory's capital. This map contains both state and union territory, and there is a union territory capital and there is state capital. By using this instrument, we would know what is a state capital or union territory capital. Sir, means if we want to know the Gujarat, the state capital, so we put this on Gujarat and then this put on capital, and the Gandhinagar is the capital of Gujarat, so that bulb glow and that buzzer produce sound. So by this we know that the capital of Gujarat is the Gandhinagar. जैसा कि आप जानते हैं कि समूचे जनपद में ही नहीं संपूर्ण मंडल में सनबीम स्कूल का नाम हर किसी के जुबान पर सुना और देखा जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि जनपद का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम हुरवा आमघाट में जो स्थित है, वहां निरंतर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं वो हम सब बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं। फिलहाल आज इस विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं के द्वारा जो अपने प्रोजेक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। जो यहाँ के जो संचालक हैं, विद्यालय के जो प्रशासक हैं, उनके मुताबिक जब बच्चे किसी सीखे हुए चीज का जब प्रदर्शन करते हैं तो वो लाइफ टाइम कभी भूलते नहीं है, अब स्मरणीय रहता है। शायद नई शिक्षा पद्धति की भी यही जो कहावत है, जो चरितार्थ है, आज वो यहाँ स्पष्ट होते हुए लोग देख सकते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं जब वो करते हैं, करके दिखाते हैं, अपने अभिभावकों को दिखाते हैं, गार्जियंस को दिखाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है वो निश्चित रूप से उनके पूरे कैरियर को बढ़ाने में जरूर मददगार साबित हो सकता है। My name is Rudra Singh. I am studying in class 2nd. The Sunbeam School Mirzapur is my school. This is our English project. The topic is preposition. Preposition definition is the word that tell us the position of people, animals, places or things are called preposition. Is under the monkey is on the tree. The monkey is under the tree. The monkey is in the stone pot. The monkey is between the field. The frog is on the lotus leaf. The monkey is in front of pond. The monkey is near the pond and also the rock. The monkey is going in the hut. The monkey is coming out from the hut. The monkey is behind the tree. Thank you. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम के दौरान
जहां तमाम छात्र अपने आप को बहुत ही जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके जो परिजन हैं, माता पिता भी आज बहुत हर्षित और प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने छात्र को अपनी आंखों के सामने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं तो जरूर उनके द्वारा लिए गए निर्णय को वो स्वयं बहुत ही सराहते हुए नजर आते हैं। I am Purnima Singh Rajput. I am studying Sunbeam School Mirzapur. A particular part of the town and the people who live there is called neighborhood. In bank, school, hospital, police station and other things. Thank you. Good morning and Jai Hind everyone. My name is Runga Singh Samrat and my parent name is Sasvi Dubey. My name is Sunbeam School talking for Hindi Varmala. This is Hindi Varmala. Hindi Varmala में स्वर, व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और व्यंजन स्वर हमारा 13 होता है और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्र आते हैं। व्यंजन में क, ख, में अ, आ, ई, ये सब आते हैं। ये हमारा वर्णमाला। थैंक यू एंड जय हिंद। ये भी जानना आवश्यक है कि बच्चे नई शिक्षा नीति के तहत क्या सीखते हैं, उसका मकसद क्या है। दरअसल तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो आज डंके की चोट पे इस बात को कहते हैं कि सनबीम स्कूल न सिर्फ जिले में बल्कि संपूर्ण मंडल में, पूरे पूर्वांचल में प्रसिद्ध क्यों है। आज इसका साक्षात्कार हर कोई करता नजर आया। बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शनी जो किया गया, जो वो बच्चे सीख के आए थे, चाहे वो घर में सीखे, चाहे विद्यालय के टीचर्स के द्वारा जो उनको प्रशिक्षित किया गया, विशेष प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके सिलेबस से रिलेटेड क्यों ना हो। बच्चा जब आज हर क्षेत्र में इस उम्र में जब बोलता है और डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बताता है, तो हर कोई आज अपने पुराने स्कूल को याद करता है कि काश हमारे भी वक्त इस तरीके का विद्यालय मौजूद होता तो हमारा स्तर कहीं और बेहतर नजर आता। फिलहाल आपको बता दें कि जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम स्कूल में आज बच्चों के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उसके सिर्फ परिजन ही नहीं, यहाँ के गुरुजन भी, यहाँ के शिक्षक भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमारे स्कूल में, सनबीम स्कूल मिर्जापुर में, बच्चों का नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का एग्जिबिट था। नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों का हम करते हैं ट्रिस्ट, जिसमें बच्चे जो क्लास की रूम की एक्टिविटी होती है, पूरे साल बच्चे जो करते हैं उसको डिस्प्ले में हम दिखाते हैं, पेरेंट विजिट करते हैं। और ऐसे ही क्लास 3 से 8 तक के बच्चे जो पूरे सत्र वो भी पढ़ाई किए, क्लासरूम लर्निंग किए, उसके बाद वो आउटकम अपने प्रोजेक्ट्स के तौर पे बनाकर वो डिस्प्ले पे लगाते हैं। तो आज काफ़ी बच्चों ने हमारे मेहनत करके प्रोजेक्ट्स बनाए, डिस्प्ले में लगाए हैं। हमारे टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की है और आपने तो विजिट करके भी कैंपस में देखे हमारे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। साइंस पे बनाया है, मैथ्स पे बनाया है, इंग्लिश पे, हर सब्जेक्ट पे बच्चों ने खूब मेहनत करके बनाया। और जैसा कि हमारा सत्र खत्म हो रहा है मार्च में एग्जाम के बाद, अब आज के दिन रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया और पेरेंट्स को हैंडओवर किया गया मार्कशीट्स। और साथ ही साथ बच्चों के पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखा, वो भी काफ़ी उत्साह होकर बच्चों को पार्टिसिपेट करा रहे थे। और बच्चों का पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्वमेंट गार्जियन का भी बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी गार्जियन को कहना चाहते हैं।